Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, today I am going to narrate you a very interesting story, Torch Bearers. A story is told of Guru Nanak that in the course of his travels he came to a village. Besides him, his disciple Mardana also came to the village. They wanted to stay there for the night, but the villagers were rude and inhospitable and wouldn't let them stay anywhere in the village. So Guru Nanak and Mardana were forced to spend the night in the open. As they turned away from the village, Guru Nanak said, "I pray that the people of this village may always stay in this village." Mardana was surprised, puzzled at this, but said nothing. जो गुरु नानक अपनी यात्रा में निकले हुए थे, किसी गांव में वो पहुंचे, उनके साथ उनका डिसाइपल मर्दाना भी था। जब वो वहां पहुंचे तो वहां के जो लोग थे वो बहुत इनहॉस्पिटेबल थे, मेहमान नवाजी नहीं करते थे, उनका बिहेवियर बहुत रूड था, उन्होंने उनका वेलकम नहीं किया और उनको वहाँ रहने के लिए भी जगह नहीं थी। गुरु नानक और मर्दाना जो है ओपन में, उन्होंने खुले में वो रात उन्होंने उस दिन निकाली। जब वो वहाँ से आगे निकले, जब उन्होंने वो विलेज छोड़ा, तो गुरु नानक ने जो है भगवान से प्रार्थना करी कि मैं प्रार्थना करता हूँ इस गांव के लोग क्या करें, हमेशा इसी गांव में रहें। अब मर्दाना को बहुत आश्चर्य हुआ, कंफ्यूज्ड भी हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। द नेक्स्ट नाइट they came to another village where they met with a very different reception. स्वागत, उनका वेलकम किया गया। नेक्स्ट डे जब वो दूसरे गांव में पहुंचे, वहां उनका स्वागत किया गया। The villagers welcomed them, treated them kindly, found them a place to stay for the night and gave them food to eat. In the morning, as Guru Nanak and Mardana were leaving, the Guru said, "I pray that the people of this village may not remain in their village, but may be scattered throughout the country." Scattered means बिखर जाना, फैल जाना। क्या प्रार्थना करी उन्होंने? जहाँ उनका वेलकम किया गया वहाँ के लिए उन्होंने प्रे किया कि मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि इस गांव के लोग इसी गांव में ना रहें, बल्कि पूरे देश में फैल जाएं। But this was too much for Mardana. He protested. Protested means complain करना। Protest करना means शिकायत करना, complain करना। अब जब मर्दाना को ये सब उसने सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया, उसने complain करी। Why? He said to the Guru, "Do you pray for good things for people who treat us badly, and for misfortunes for those who treat us well? You should have prayed for those inhospitable villagers to be scattered over the country and for these good people to remain comfortably where they are." क्या कहा उसने कि जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया उनके साथ तो आपने अच्छा उनके लिए प्रे किया, और जिन्होंने अच्छा प्रे किया उनके लिए आपने बुरा अच्छा बिहेवियर किया, उनके साथ आपने गलत उनको प्रे किया उनके लिए। ऐसा क्यों किया आपने? जो हमारे साथ इनहॉस्पिटेबल थे उनको क्या बोलना चाहिए था कि जो हैं पूरे देश में वो फैल जाएं, और जिन्होंने अच्छा किया था उनको क्या बोलना चाहिए था कि वो आराम से जिस जगह हैं उसी जगह पर रहें। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? नो, रिप्लाइड गुरु नानक, "It's better for those inhospitable and selfish people to stay in one place." Selfish means स्वार्थी, जो केवल अपने बारे में सोचते हैं। उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि जो इनहॉस्पिटेबल लोग थे, स्वार्थी लोग थे, उनको एक ही जगह में रहना उनके लिए एप्रोप्रिएट है। Where they can do harm in one place only. If they went to other place, they would have an evil influence all through the country. Now these good people with whom we put up last night are too good to be left in one place. They have something which is needed everywhere. Their influence and their character will be of benefit to others wherever they go. Hence, they ought to be scattered so that they can bear light to other places. क्या कहा कि जो ये बुरे लोग थे,
इनके लिए वही स्थान सही था। वही स्थान सही क्यों था? क्योंकि इससे जो है उनका इन्फ्लुएंस औरों के ऊपर नहीं पड़ेगा, और जहाँ पर हैं जितने लोग वहाँ पे रहते हैं उतने ही लोग बुरे रहेंगे। लेकिन जो ये अच्छे लोग थे, इनका सब जगह जाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो उनके ऊपर अंदर जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी और लोग भी देखेंगे, उससे इन्फ्लुएंस्ड होंगे और उसको सीखेंगे। जहाँ भी वो जाएंगे अपने कैरेक्टर से, अपने बिहेवियर से वो इन्फ्लुएंस करेंगे, और फिर जो उनके कैरेक्टर की जो लाइट है वो सब जगह दूसरी जगह भी फैल जाएगी और लोग भी अच्छे हो जाएंगे। नाउ वी हैव टू सी टू इट that we grow into such citizens that people will want the light of our character and our influence everywhere. We don't wish to have the sort of character that will make people want us to stay in one place and not to mix with others. If we are to be good citizens who will be able to serve their country, we must be carrying light with us wherever we go and not darkness. Our influence on others must be such that wherever we go and wherever we live, other people will be the better for our having been with them. A good citizen is a center of light wherever he lives and whatever he is doing. The greater the number of good citizens in a country, the more enlightened will the country be as a whole. अब उन्होंने क्या कहा कि हमारा कैरेक्टर और हमारा इन्फ्लुएंस ऐसा होना चाहिए कि हम जहाँ भी जाएं और जहाँ भी रहें, लोग हमसे प्रभावित हों। हम जो कुछ भी करें, लोगों को वो अच्छा लगे। और अगर हम ऐसा करते हैं, अगर अच्छे लोग सब तरफ फैल जाते हैं, तो क्या होता है? देश में सारे अच्छे नागरिक होते हैं, और जितने अच्छे नागरिक होंगे उस देश में उतना ही ज्ञान भी होगा, वो देश उतना ही ज्ञानवान होगा। All of us are or will be citizens of our country, but we have to make up our minds whether we are going to be good citizens or bad ones. We have to decide whether we shall live such lives that our country will be the better for our lives and work, or the worse. We have to try to imagine what our country would be like if everyone lived and acted in just the same way as we do. हम जहाँ भी रहते हैं, जिस भी देश के नागरिक हैं, हमें वहाँ बहुत अच्छे से बिहेव करना होता है। हमें अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल अच्छे से बिठा लेनी चाहिए कि हमें एक अच्छा नागरिक बनना है या बुरा नागरिक बनना है। हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें अपने देश के लिए कैसा जीवन जीना है, अच्छा या बुरा। हमें अच्छे काम से लोगों को प्रभावित करना है, इम्प्रेस करना है, या बुरे काम से करना है। हमें अच्छी तरीके से ये इमेजिन कर लेना चाहिए कि हम जो भी काम करेंगे, जैसा भी काम करते हैं, वैसा ही हमें देख करके अगला भी करता है। सेम वे एज वी डू, राइट? जैसा हम करते हैं, अगर हर कोई उसी ढंग से रहे, वैसे ही एक्ट करे जैसा हम करते हैं, तो हमें अच्छा करना पड़ेगा। तभी अगला देख के हमसे इम्प्रेस होगा और वो अच्छा करेगा। और फिर जो देश है उसमें सारे नागरिक कैसे होंगे? अच्छे नागरिक होंगे। अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक. Each one of us is a link in the chain that is our country. If we are weak and poor citizen, then our country will suffer, even though we may try to comfort ourselves with the false ideas that it doesn't make any difference what one person does in such a large country where so many people live. But if one candle goes out, then in that one place there is darkness instead of light. It is only when all the candles burn brightly that the whole house will be full of light. अगर एक भी कड़ी चेन में से अगर एक भी पर्सन वीक होता है, तो वो पूरी चेन कैसी हो जाती है? वीक हो जाती है। एक कैंडल अगर बुझ जाती है, तो उस एक कैंडल के बुझने से वहीं पर अंधेरा होता है, लाइट नहीं होती वहाँ पे। लेकिन क्या है, जब सब एक साथ कैंडल सारी जलनी शुरू होती हैं, तो पूरे कमरे में लाइट फैल जाती है। इसी तरीके से अगर एक कंट्री में जितने नागरिक हैं, सारे के सारे अच्छे थॉट्स वाले हैं, प्योर थॉट्स वाले हैं, गुड सिटीजन्स हैं, तो वो कंट्री कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है। और हमें अच्छा नागरिक बन करके पूरे देश में फैल जाना है और कंट्री को स्ट्रॉन्ग करना है।
each of us, therefore, has the responsibility of being a good citizen. We must see that a particular link in the chain is not a weak one. When the Olympic Games were held in London in 1948, a flame was carried to London from Greece. हमें क्या देखना है? हम एक अच्छा नागरिक होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम सबकी है. हमें ये ध्यान देना है कि हमारी चेन में कोई एक सिंगल भी वीक नहीं होना चाहिए. ओलंपिक गेम्स में जब फ्लेम लाई गई तो वो फ्लेम कहाँ से आई थी? From London to Greece. When the Olympic Games used to be held in times long ago, this flame was carried by a long relay of runners right across Europe. जब स्टार्ट हुए थे वहाँ पर तो एक जो लॉन्ग रनर्स थे वो रिले रेस उन्होंने किया था और वो फ्लेम जो है एक से दूसरे के पास में पास की गई थी और फिर जो है उसको जो एंड पॉइंट था वहां पर लाया गया था. तो ईच रनर कैरिंग अ लाइटेड टॉर्च. हर रनर जो था उसके हाथ में क्या था? एक लाइटेड टॉर्च था. एंड रैन फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस टिल ही केम टू द प्लेस वेयर अ फ्रेश रनर वॉज वेटिंग फॉर हिम. वो रनर उस टॉर्च को लेकर किस प्लेस तक पहुंचा? जहां पर जो फ्रेश रनर उसका वेट कर रहा था वहां तक पहुंचा. The new runner then lit his torch from the one that had been carried to him. फिर उसने वो टॉर्च वहाँ पे जो उसके पास लाई गई थी वहाँ से उसको लाइटेड किया और फिर वो आगे की तरफ निकल गया. As soon as he had done this, he set out to run with his lighted torch to where the next runner was waiting. जैसे ही उसने ये किया उसके बाद उस जो जलता हुआ मशाल था उसको लेकर के वो कहाँ लेके गया उस मशाल को? जहाँ नेक्स्ट रनर उसका वेट कर रहा था. He had a fresh torch, which he, in his turn, lit from the one brought to him. अब अपनी बारी में उसने कहाँ से लेकर के आया था? जो उसके पास पिछला लेकर के आया था उसने उसको लाइटेड किया और फिर दूसरे के पास उसको लेके गया. And so from runner to runner, the flame was carried till it reached London. और इस तरीके से एक रनर से दूसरे के पास, दूसरे रनर से तीसरे के पास, तब तक वो चेन बनती चली गई जब तक वो कहाँ नहीं पहुँचा? लंदन नहीं पहुँचा. फ्रॉम द लास्ट टॉर्च वॉज लिट द फायर विच बर्न ऑल द टाइम द गेम्स वर गोइंग ऑन. और फिर जब लास्ट जो रनर था वो उस पॉइंट पर पहुँचा जहाँ वो गेम हो रहे थे और तब तक वो मशाल जलती रही जब तक कि सारे के सारे गेम खत्म नहीं हो गए थे. जहां वो गेम्स चल रहे थे वहां पर उसको रखा गया था. Although nothing was said about it and no names were mentioned, at one place there was an accident. One runner, when handing over his torch to a fresh runner, it go out. How ashamed he must have been. He had let the flame go out. He had broken the chain. जबकि कोई नाम मेंशन नहीं किया गया उस बीच में, लेकिन एक वहाँ पर इंसिडेंट क्या हुआ था? एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि जब वो एक रनर दूसरे को मशाल हैंड ओवर कर रहा था, जो उसकी जो फ्रेश रनर को जब वो टॉर्च दे रहा था तो उसकी जो लौ थी वो बुझ गई थी. उसको बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने जो है वो जो चेन थी एक तरीके से वो चेन उसकी टूट गई थी. Each one of us as we leave school has a flame to carry which we have to pass on to others. We have been giving knowledge and skill. These we pass on by using them in the service of our country. If we do not use them, it means that we are letting the flame go out, and none of us wants to do that. But if we are going to be able to keep alight the torch that has been given us, we have to know how to look after it. And we have to know how to hold it as we run. In other words, we have to train ourselves for citizenship and for service of our country. उस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ था? उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी. तो इसी तरीके से हमें भी जब हम अपना स्कूल पास कर लेते हैं, हम सब के अंदर कोई ना कोई नॉलेज होता है, कुछ ना कुछ हमने सीखा हुआ होता है. तो हमें उस जो हमने सीखा हुआ है उसकी फ्लेम को हमें हमेशा क्या रखना है? उसको जिंदा रखना है, उसको जलाए रखना है. और हमें ये पता होना चाहिए कि अपना जो हमारा नॉलेज है हम उसको किस तरीके से होल्ड कर सकते हैं और कैसे उसको हम दूसरे लोगों को पास कर सकते हैं और कैसे हम उसको ख़त्म ना होने दें.
अगर हम सब ये चीज़ सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाते हैं। और दूसरे शब्दों में हमें क्या है, अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करना है कि हम एक ऐसे नागरिक बने जो देश के लिए हम अपनी सर्विसेज पे कर सकें। हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने ताकि हम अपनी कंट्री के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर सकें। तो देखा बच्चों आपने, हम जब मिल करके कोई काम करते हैं तो वो चीज़ हमेशा सक्सेसफुल होती है। दूसरी बात, हमने जो कुछ भी सीखा है, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनने के लिए स्कूल में हम जाते हैं, हम कुछ ना कुछ वहाँ नया सीखते हैं, अच्छा सीखते हैं, तो उससे हम किस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं, अपने देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। छोटी छोटी हमारी जो हेल्प होती हैं वो बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में। तो अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी को हम अच्छा रास्ता दिखाते हैं, अपना ज्ञान जो हमने सीखा हुआ है उस ज्ञान के दम पर हम उसको आगे लेके जाते हैं, तो इट मीन्स वी आर डूइंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इन दिस वे वी कैन बिकम a responsible citizen. So I hope you have enjoyed the story. Now it's time to revise. You can revise it.